हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज का सेशन एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए लेके आए हम और ये एमसीक्यू सेशन है विच इज़ द लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम क्विकली, टू लर्न देम क्विकली, टू मेमोराइज देम वेरी क्विकली बिकॉज एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हैं कहीं पर तो आप उसे रिवाइज कर लीजिए, और आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी। इट्स अ वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्लीज रिवाइज इट बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोबेबल है क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिख जाए। तो इट्स अ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज विच विल गो ऑन इन द कमिंग डेज। सो प्लीज ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, राइट? In the meantime, I just want to announce that our 2026 foundation batches has already been started with basics to advanced level classes with timely coverage of syllabus, personal mentorship, test and personal attention, notes, MCQ, everything will be provided in that, right? So let's move on to the first question of the day. The first question says that the Prime Minister Shri Narendra Modi performed the Bhumi Pujan of the country's first Ken-Betwa river linking project on. देखिए आंसर इज गिवन देयर। द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू एट दिस पॉइंट इज दैट यू मस्ट रिमेंबर द डेट्स एंड द फैक्ट्स, राइट? सो डायरेक्टली लेट्स कम टू द पॉइंट। द आंसर इज 25th of December 2024। तो आपको याद रखना है वेन एवर यू सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, द डेट फॉर द भूमि पूजन वॉज 25th of December। नेक्स्ट क्वेश्चन, tripartite agreement between MP, Rajasthan and central government for Parvati Kalisindh Chambal link project was signed on, right? So this project is which project? PKC project. It's a tripartite agreement between MP, Rajasthan and the central government. This can be the question also कि Parvati Kalisindh Chambal link project is a tripartite agreement among which of the following states or which of the following parties? तो ये भी याद रखिएगा, MP, Rajasthan and the central government, right? And this was signed on. The date is very important as the MCQs or the questions comes in the examination are like that, which are very specific to dates. So 17 December 2024 is the date. So first date we have discussed is 25th of December. Second is the 17th of December. Let's move on to the next question. Kranti Surya Tatya Bhil University was inaugurated in which district of MP? It's a recent current affair news from Madhya Pradesh. Answer is Khargone district. Next, how many PM colleges of excellence were started in Madhya Pradesh to ensure quality education? कितने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसेज शुरू किए गए मध्य प्रदेश में टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन ऑल द 55 डिस्ट्रिक्ट्स? 55 PM कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस आर स्टार्टेड। Next question, which year has been declared as the year of industry and employment by the MP government? This is very important point. Many students will tick 2024, but the correct answer is 2025. So MP government has declared the year of industry and employment as 2025. Next question, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बहुत ज्यादा न्यूज में थी। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट, वी ऑल नो दैट विक्रम उत्सव के ड्यूरेशन में ही विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक का भी इनॉग्रेशन हुआ था। सो आंसर इज उज्जैन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ राम वन गमन पथ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट? Right? So Ram Van Gaman Path project is approved by the government. Important point for the examination is what is the total length of that Ram Van Gaman Path? So answer is 1450 kilometer as approved by the government. So please remember for the coming examination. Next important, which state is the first in the country to initiate cyber tehsil project in all the districts? So cyber tehsil project सभी districts में initiate करने का पहला कौन सा state है country में? तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो cyber tehsil project से related question आए तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश is the first in the country to initiate that in all the districts. Next question, new remuneration of Tendu leaf collectors per standard bag given by the government of Madhya Pradesh कितना है? Because the amount has been increased now and the current amount is rupees 4,000. So these kind of questions are also come in the coming examination. ठीक है? Next question, Sampada 2.0 scheme is related to, ऐसा एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं कि स्कीम पूछ ले और उससे किससे रिलेटेड है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए। तो याद रखिए संपदा 2.0 स्कीम, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली एंड इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ई स्टैंपिंग। किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ई स्टैंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली भूमि पूजन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट मेडिसिटी वॉज परफॉर्म्ड इन। मेडिसिटी कहां ओपन हो रही है स्टेट की पहली, तो उसका आंसर भी क्या होने वाला है, उज्जैन होने वाला है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक के लिए भी आंसर क्या था, उज्जैन था। नेक्स्ट, विच सर्विस हैज बीन इनिशिएटेड टू एयरलिफ्ट क्रिटिकली इल और एक्सीडेंट विक्टिम्स फ्रॉम रिमोट एरियाज। ऐसी कौन सी सर्विस शुरू की गई है फॉर टू एयरलिफ्ट क्रिटिकली इल विक्टिम्स? आंसर इज पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many Ayushman cards have been distributed? So under the achievements of Madhya Pradesh government as released in the month of December, so this was very important point highlighted by our CM Mohan Yadav ji. So how many Ayushman cards have been distributed under the Ayushman Bharat scheme, making Madhya Pradesh as the leader in the country? So answer is over 4 crores Ayushman cards have been distributed. याद रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश इज नाउ द लेपर्ड स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन द कंट्री। दैट इज राइट, बट हाउ मेनी लेपर्ड्स आर देयर इन एमपी? आंसर इज 3907। हाउ व्हाट्स द काउंट ऑफ लेपर्ड्स इन मध्य प्रदेश? आंसर इज 3907। याद रखेंगे फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। नेम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड रिसेंटली। देखिए 7th टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड रिसेंटली। आंसर इज रातापानी टाइगर रिजर्व, और इसको रीनेम भी किया गया है ऑन द बेस्ड ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी वीएस वाकनकर जी, दैट इज वीएस वाकनकर टाइगर रिजर्व। ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज रातापानी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री में ही वी हैव द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉल्ड एज भीम बेटका, right, which was discovered by V.S. Wakankar ji in 1957, right? That's why this tiger reserve is also named as V.S. Wakankar Tiger Reserve. याद रखना इस फैक्ट को एग्जाम में। नेक्स्ट, चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय द स्टेट्स। कौन से स्टेट्स हैं जो ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं? आंसर इज मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड दी उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, government approval has been given for the Chitrangi Dabyut micro irrigation project. This irrigation project was in news recently. ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपने रन किया है? ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में आपने रन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज द ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी? देखिए अगेन आंसर इसका भी क्या होने वाला है? उज्जैन होने वाला है। मेडी सिटी, स्पिरिचुअल सिटी, वैदिक क्लॉक, सबके लिए आंसर क्या टिक करना है हमें? उज्जैन। सिंहस्थ कुंभ एट उज्जैन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर, तो आंसर क्या है इसका? 2028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं सो दैट आपका भी रिवीजन क्विक हो, राइट? इट्स अ कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट? इफ यू फील दैट यू नीड टू नोट डाउन द फैक्ट्स, तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं, राइट? बट इट्स अ क्विक रिवीजन सीरीज, सो आई नीड टू बी अ लिटिल बिट फास्टर। द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड एट, आंसर इज प्राणपुर विलेज, चंदेरी इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। प्राणपुर विलेज, याद रखना इस फैक्ट को। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा है? प्राणपुर विलेज। नेक्स्ट, इंदौर मनमाड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 18,036 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंदौर मनमाड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की ओवरऑल लेंथ क्या है जो अप्रूव की गई थी? तो आंसर क्या है? 309 किलोमीटर्स। याद रखना व्हाट इज द अप्रूव्ड लेंथ? आंसर इज 309 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, इंदौर मनमाड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट विल पास थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, कहां से पास होगा? इंदौर के बाद धार, बड़वानी एंड खरगोन से पास होगा फाइनली, एंड इट विल मीट एट मनमाड। सो बेसिकली जो भोपाल टू बॉम्बे रूट है रेलवे ट्रैक, खंडवा के आगे मनमाड, भुसावल, जलगांव, उसमें जाके ये मीट करेगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द निमाड़ रीजन, राइट? नेक्स्ट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 14,440 करोड़ इन विच सिटीज ऑफ एमपी? तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे इन इंदौर एंड भोपाल, right? That was the exact data given by the MP government. In a significant development for the Vindhyan region, inauguration of Madhya Pradesh 6th airport took place at, answer is रीवा। 6th airport MP का कहाँ inaugurate हुआ है? विंध्यन रीजन में, रीवा में inaugurate हुआ है। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? इसमें कौन टॉप पर है? आंसर इज मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स में जो एमपी टॉप पर है।
Next question, which state tops in the implementation of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana? There are multiple schemes mentioned in our MP365 magazine also. आप में से किसी को अगर वो मैगजीन चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट कर सकता है इन द गिवन नंबर 9953733830 पर, राइट. सो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स इन विच एमपी हैज टॉप्ड द चार्ट, तो वो आप याद कर लें. आई हैव पिक्ड 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन विच मध्य प्रदेश इज एट द टॉप. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आंसर इज एमपी. Right. Next, under PM Jan Man Mission, electricity will be provided to unelectrified houses of which tribes of the state? Electrified houses of which tribes of the state? तो आंसर होगा बैगा, भारिया एंड सहरिया. सो इन ट्राइब्स की जो फैमिलीज हैं उनके अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए PM जन मन मिशन जो है हम रन कर रहे हैं. Right. Next important, 35th Battalion of the Special Armed Force Police Force SAF Mandla will be named after. स्पेशल आर्म फोर्सेस की जो मंडला बटालियन है, 35th बटालियन है सॉरी, इट विल बी नेम्ड आफ्टर वीरांगना रानी दुर्गावती. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, Sri Badal Bhoi Tribal Freedom Fighters Museum is located at Chhindwara. We all know that this question has been asked in the previous years also. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहां पे लोकेटेड है? तो आंसर क्या होने वाला है इसका? जबलपुर होने वाला है. तो एक का छिंदवाड़ा, दूसरे का जबलपुर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर अमृत भारत स्टेशन योजना PM laid the foundation of redevelopment of work of how many railway stations of मध्य प्रदेश? कितने रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है? आंसर इज 33 स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन योजना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश गेट्स द 4th सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन. तो एमपी की 4th सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक रन करेगी? खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन तक रन करेगी. नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिसेंटली अपडेटेड एज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द स्टेट? राजमाता, आंसर लिखना जरूरी है. राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर. याद रखना, लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इसको अपग्रेड किया गया है, रीडेवलप किया गया है. राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जालुद सोलर पावर प्लांट इज अ 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट? कहां पर है ये? जलुद विलेज खरगोन में है, राइट. इट्स अ सोलर पावर प्लांट, राइट. जलुद सोलर पावर प्लांट 60 मेगावाट का, रिसेंटली इसको डेडिकेट किया गया है. In the first phase, floating solar power project at Omkareshwar started generating electricity with the capacity of. तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली कैपेसिटी कितनी है फर्स्ट फेज में? 278 मेगावाट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन. It was also in news. As of 2024, how much area of Madhya Pradesh is irrigated? ये भी डेटा रिलीज किया है गवर्नमेंट ने. अप्रोक्सीमेटली 50 लाख हेक्टेयर्स एरिया हमने एमपी में हम इरिगेट करते हैं एज ऑफ 2024. दिस इज अ रीसेंट डेटा. Government recently decided to build Vrindavan village in every block of the state to promote. रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वृंदावन विलेजेस बनाने के लिए इन एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टेट. वाई? टू प्रोमोट मिल्क प्रोडक्शन एंड रूरल लाइवलीहुड. किस लिए किया है? टू प्रोमोट मिल्क प्रोडक्शन एंड रूरल लाइवलीहुड. चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इन मध्य प्रदेश public services, women are given reservation up to. This is very important update. 35% women reservation is approved, right, in the Madhya Pradesh public services. Very common fact, very basic fact for the examination, आप सबको पता होगा. Which state became the first state in the country to implement the national education policy? इसका आंसर भी मध्य प्रदेश है. These are the highlights of the current affairs of last 8 to 10 months जो आपको आज सीरीज में वीडियो में देखने को मिल रही है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी वॉज रिसेंटली स्टार्टेड इन. आंसर इज सागर. रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पढ़ते ही क्या टिक करना है? सागर. नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे यूनिवर्सिटी रिसेंटली स्टार्टेड इन. तात्या टोपे यूनिवर्सिटी सुनते ही क्या टिक करना है? गुना टिक करना है. ठीक है. फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन मध्य प्रदेश? आंसर इज 6 यूनिवर्सिटीज, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन एंड रीवा. चलिए,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली एमपी सरपास द नेशनल एवरेज इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए याद रखना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो में एमपी ने नेशनल एवरेज को सरपास कर दिया है। एंड जीईआर ऑफ एमपी अगर पूछ ले अकॉर्डिंग टू 2021-22 व्हाट विल बी द आंसर, यू विल टेक आंसर इज 28.9। एंड व्हाट इज ऑल इंडिया जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, आंसर इज 28.4। ये दोनों डेटा मैंने यहां पे लिख दिया है, आप प्लीज इसको याद कर लें। एमपी का जीईआर 28.9 है, ऑल इंडिया जीईआर 28.4 है, जिसको हमने अभी रिसेंटली सरपास किया है, और बेस ईयर है 2021-22। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन डिसीजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट विल नाउ बी कॉल्ड एज, वाइस चांसलर्स को अब क्या बोला जाएगा, कुल गुरु नाम से बुलाया जाएगा। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। To provide cloud services to various departments of Madhya Pradesh, cloud policy was approved in the year. मध्य प्रदेश की क्लाउड पॉलिसी कब अप्रूव की गई थी, तो 2025 आंसर मत करना, 2024 इज द करेक्ट आंसर। Inauguration of the newly built श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन ग्वालियर वाज हेल्ड ऑन। तो ये जो स्टेडियम है माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका इनॉग्रेशन 15 जून 2024 को किया गया है। ये डेट आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे केन बेतवा और पार्वती काली सिंह चंबल प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वॉज अवॉर्डेड विच स्टेटस इन द नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग एंड नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। तो स्टार्टअप रैंकिंग्स में हम लीडर स्टेटस होल्ड करते हैं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर स्टेटस होल्ड रखता है। Which district of MP received national recognition for its excellence in banana processing under the ODOP initiative? तो बनाना के लिए तो आपको एक ही जगह याद होनी चाहिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, आंसर इज बुरहानपुर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज अराउंड 50 क्वेश्चंस कवर किए वेरी क्विकली, राइट। आप सब मोटिवेटेड रहिए, आप सबको सक्सेस मिलनी चाहिए इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो मैं एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करा देता हूं जो जो क्विक पॉइंट्स हैं। बनाना मतलब बुरहानपुर। नेक्स्ट, स्टार्टअप रैंकिंग्स में हम लीडर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्रिकेट स्टेडियम 15 जून 2024, क्लाउड पॉलिसी 2024, वाइस चांसलर्स विल बी कॉल्ड एज द कुल गुरु, राइट। एमपी का जीईआर इज 28.9, ऑल इंडिया ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज 28.4। नेक्स्ट, 6 यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने ओपन किए हैं, तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना में, रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी सागर में, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट है एमपी। उसके बाद मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विसेज में वुमेन रिजर्वेशन 35%, गवर्नमेंट ने वृंदावन विलेजेस मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किया एवरी ब्लॉक में। एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इरिगेटेड 50 लाख हेक्टेयर्स। फर्स्ट फेज ऑफ ओमकारेश्वर सोलर प्लांट में 278 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जालूद सोलर पावर प्लांट 60 मेगावाट का खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश लार्जेस्ट जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट हो गया है। 4 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत खजुराहो टू हजरत निजामुद्दीन है। 33 स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं अंडर अमृत भारत स्टेशन। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह म्यूजियम जबलपुर में है। क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। बादल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम छिंदवाड़ा में है। 35th बटालियन मंडला SAF जो है वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से इसको जाना जाएगा। पीएम जनमन मिशन में बैगा भारी एंड सहरिया फैमिलीज को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर है। एंड विंध्य रीजन का 6th एयरपोर्ट रीवा है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इंदौर एंड भोपाल में रन हो रहे हैं। इंदौर मड़माड़ रेलवे लाइन धार बड़वानी खरगोन को भी से होते हुए जाएगी। 309 किलोमीटर्स की है। 18,036 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज इनॉग्रेट हुआ है प्राणपुर विलेज चंदेरी में। सिंहस्थ 2028 में होगा। ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी उज्जैन होने वाली है। चित्रांगी दब्यूत माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंगरौली में है। चीता कॉरिडोर MP राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में होगा। 8 टाइगर रिजर्व रातापानी जिसका नाम VS वाकनकर टाइगर रिजर्व भी है। 7 टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। MP लेपर्ड स्टेट है जिसको 3907 जिसमें टोटल लेपर्ड्स हैं। ओवर 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स MP ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस हम क्रिटिकली इल विक्टिम्स को एयरलिफ्ट करेंगे। भूमि पूजन ऑफ फर्स्ट मेडिसिटी उज्जैन में हुआ है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ई स्टैंपिंग इज डन इन संपदा 2.0 स्कीम। उसके बाद तेंदुल लिफ्ट कलेक्टर्स को 4,000 पर स्टैंडर्ड बैग का रेम्यूनरेशन डिसाइड किया गया है। साइबर तहसील प्रोजेक्ट में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश है। राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उज्जैन एंड
इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट का ईयर 2025 एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एमपी कॉलेजेस ऑफ पीएम कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स में है। क्रांति सूर्य तात्या भील यूनिवर्सिटी खरगोन में स्टैब्लिश की जा रही है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट एमपी, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पार्वती काली सिंह चंबल प्रोजेक्ट का 17 दिसंबर को हुआ था साइन। एंड केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 25 दिसंबर को हुआ था। तो मैंने बोथ वेज आपको रिवाइज करवा दिया। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ऐसे और वीडियोस में लेके आऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें, प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, राइट, एंड बी मोटिवेटेड एज यू कैन ऑल्सो बी द टॉपर। लास्ट मोमेंट पे एकदम हिम्मत नहीं हारनी है, राइट। Thank you very much for attending the today's session. Good luck to all of you.